Good evening and welcome to this special presentation from Lucknow. Behind me is the Rumi Darwaza, the entry point, as they say, to Lucknow. Who will take this grand entry in March 2022? Now, obviously, a lot has been said. There is a fair amount of Hindu-Muslim issues of law and order. All have been raised. But what really is on the mind of the youth of Uttar Pradesh? What is the youth thinking? Has the issues of the youth, have those important issues been raised or addressed by any political party? Remember, a few of them have a youth manifesto. Has the BJP been able to convince them on the issue of employment? Or do they stand more convinced by leaders of the opposition? Let us start the big fight from ground zero, Lucknow. Let me introduce our panel right here. A very, very carefully selected panel so that you get all sides of the political divide, but all of them young, not just young at heart, but young. We have some students as well. Let me start by introducing Aman Gupta. He's a student in Lucknow. Nikhat Khan, also a student. Thank you very much for joining us. We also have Mr. Mayank Yadav of the Samajwadi Party. Thank you very much, Mr. Yadav, for joining us. Manas Dwivedi of the BJYM in Uttar Pradesh is with us. Thank you very much, Manas ji, for joining us. Astha Tiwari is the spokesperson of the UP Congress. Thank you very much, Astha. RN Mishra is the State General Secretary of the NSUI. Thank you very much for joining us. Akshay Singh is the Secretary of the ABVP in the Lucknow University. Thank you, Akshay, for joining us. Ayush, Anjali, Farwa and Adnan are affiliated with ISA. Thank you very much for being a part of this discussion. Misam Zaidi is the Nagar Upadhyaksh of the Samajwadi Party with us, and Sama Mehdi, a social activist and also associated with the Samajwadi Party right here. Thank you very much. Let's first start by asking the students what according to them is their Chunavi Mudda. Let me begin with you. Mr. Gupta, what do you think is the most important issue in this election? So being a student, I personally believe the most important issue that any government, whichever comes in UP, that should work on this basically the education system, and other than that the unemployment which is there, it has to be improved. And whichever government comes, if any party is like giving any candidate, that the candidate must be like educated, so that if he is educated, so you want an educated candidate? Exactly. Okay. If any educated candidate is there, then only he can understand the importance of education, and then he can like work for unemployment, which has to be removed from the society. So I believe the candidates should be educated. Okay, Nikhat, what about you? सर, इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या रिलीजन बेसिस हो, या लड़का लड़की हो, हमें बस इक्वालिटी चाहिए, बराबर का हक चाहिए, और जो भी सरकार हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही काम करे, संविधान को ही लेकर ही अपना काम करे। यही Okay, sure. I want to come to Mr. Mayank Yadav now. Mayank ji, what according to you is that single biggest issue on which the Samajwadi Party is contesting these elections? And also, what do you think affects the youth of this state most? And do you think you have been able to address that point? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यूथ के साथ ये है कि पिछले 5 साल की सरकार में इन्होंने रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया है, और जब भी नौजवान फॉर्म भरता है तो पेपर लीक हो जाता है। लगातार आपने भी देखा होगा कई पेपर लीक हुए। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो आए यहाँ पर सरकार से रोजगार मांगने, सरकार ने बात नहीं सुनी, उन्होंने प्रदर्शन किया। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तब सरकार उनकी बात सुनने की जगह उन पर लाठियां चला रही थी, उन पे फर्जी के मुकदमे, आपराधिक मुकदमे तक उन पे लिखे गए। तो देखिए, ये एक तो सरकार का ये एक गलत इशू है। और जो बात समाजवादी पार्टी की आती है, तो हमारी पार्टी ने अपने 2012 से 2017 के कार्यकाल में 18 लाख लैपटॉप देने का काम किया, और उसके बाद भी जब हम लोग सरकार में नहीं रहे, उसके बाद भी जो मेधावी छात्रों को अखिलेश यादव जी ने सरकार जाने के बाद भी लैपटॉप दिए। और जो 2022 का समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें लैपटॉप वितरण फिर से किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज रोजगार के लिए तो आपका ये कहना है ये सारे मुद्दे जो हैं ये युवा से जुड़े हुए हैं, एंड द यूथ विल एसोसिएट विद दीज इश्यूज।
मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना, इट्स अ वेरी यूथ सेंट्रिक। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी, दे हैव अ सेपरेट मैनिफेस्टो फॉर द यूथ, अ सेपरेट वन फॉर वुमेन, सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, एक तो एक ध्रुवीकरण की बात हुई, उसमें आपको लगता है आप यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप उसमें यूथ को एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपको घेरे हुए। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तब सबसे बड़ा मुद्दा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों पिछले 14 वर्षों से सरकार रही, उसने जो बेरोजगारी का गड्ढा खोद रखा था उसको पाटने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। ओडीओपी के माध्यम से हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, महिलाओं को रोजगार देने का बात हो, स्वरोजगार हो, बैंक से किस प्रकार से ऋण मिले ताकि युवा अपना एक स्टार्टअप कर सके, इस बात की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से की है। लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। रोजगार बढ़े, बिल्कुल बढ़े, और आने वाले 10 मार्च को आप फिर से देख लेंगे सबसे ज्यादा। मैंने सुना आपका भी मैंने सुना, आप भी सुनने की क्षमता रखिए। और रही बात ध्रुवीकरण की, जात आधारित वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। जात आधारित राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग भूल गए हैं किस प्रकार से दरोगा भर्तियों में आपने भ्रष्टाचार किया था। लेखपाल भर्ती में एक लंबी घोटाले की फेयर लिस्ट थी, क्या भूल गए हैं आप लोग? समाजवादी पार्टियों से ले लीजिए, जो गड्ढा इन्होंने खोदा था। नहीं ये, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, एक सेकंड मानस जी, मुझे ये समझ नहीं आता, केंद्र में आप अभी तक वो गड्ढा भर रहे हैं, प्रदेश में भी हमने गड्ढा भरा, प्रदेश में भी गड्ढा भर रहे हैं। वहां तो आपने नेहरू से शुरुआत की है, तो अभी तो 70 साल का गड्ढा भरते भरते कितना टाइम लगेगा? निश्चित रूप से कालजयी काम हो रहा है। समय लगता है, पर 9 साल होने को आ रहे हैं, 8 साल होने को आ रहे हैं सरकार में मोदी जी की, और 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी के बीत गए हैं। मैं एक सेकंड आपके उत्तर प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, इस चीज का विश्वास दिलाता है। आस्था जी, you've seen the allegations. There are allegations against the Congress, but I will want to remain focused on the issue at hand here. Who is addressing the concerns of the youth, and does the BJP have the pulse on what the youth wants? Does the Samajwadi Party has it, or do you? No, they do not have the pulse of youth, according to me. Only that's why only I'm saying this, that their idea of Stand Up India never stood in the whole 8 years of BJP government. And one more thing I would like to add कि ऐसा काम इन्होंने किया है पिछले 8 साल में कि जो 70 सालों में हमने बना करके खड़ा किया था, सब कुछ तो बेच खाया भाई आपने, सब कुछ तो बेच दिया आपने, सब कुछ तो प्राइवेटाइज कर रहे हो आप, रेलवे प्राइवेटाइज कर रहे हो आप, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हो, वो फोर्स आप भूल गए, जीप घोटाला कांड आप भूल गए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड आप भूल गए। स्पेक्ट्रम कभी प्रूफ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना 2G स्पेक्ट्रम कभी प्रूफ नहीं हुआ। आप जिन घोटालों को लेकर के आए हो आप उसको प्रूफ तक नहीं कर पाए हो। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके। मानस जी मेरी बात सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला 3-4 दिन पहले हुआ है गुजरात में। एबीजी शिपकार्ड कंपनी 28 बैंकों का पैसा 22,864 करोड़ रुपए लेके भाग गए। वह गुजरात में किसकी सरकार है, जवाब दीजिए, और कब तक आप पकड़ेंगे उसका जवाब दे दीजिए। दिया लोन दिया कब गया, इस बात का जवाब दे दीजिए। यूपीए सरकार में दिया गया लोन, यूपीए सरकार में विजय माल्या को लोन किसने दिया, यूपीए सरकार ने दिया। Okay, one more. Okay, the point, one. I know tempers immediately go high, but I will like to remain focused on the demands and the aspirations of the youth of Uttar Pradesh. Which one of you is addressing that? Very quickly, yes. जैसे आपने कहा जो इशू एट हैंड है, अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे जो बात किया, सो वी वांट टू से व्हाट हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू पावर एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ। तो पहले उसमें जो इनका सबसे पहला वादा था, इनके संकल्प पत्र में, उसको मैनिफेस्टो क्या कहा जाए, था कि 70 लाख रोजगार देंगे, और 70 लाख रोजगार का कहीं नाम नहीं है। झूठे आंकड़े के साथ 4.5 लाख ये लोग कह रहे हैं हमने रोजगार दिए, वो भी एक नंबर के झूठे आंकड़े हैं। एक यूनिक सिचुएशन हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या है कि ये
पहली बार ऐसा देखा गया कोई गवर्नमेंट आए और जितना 5 साल पहले जॉब एक स्टेट में थी उससे कम हो जाए। 16.5 लाख पहले सैलरीड जॉब्स थी यूपी में, अब वो केवल 16 लाख, मतलब पहले से कम हो गई हैं। उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का लगातार 27-28 में से 16 के 16-17 पेपर लीक हो जा रहे हैं, और जब पेपर लीक हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई भाजपा का नेता नजर आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, यूपी टेट वाले, पेट वाले, यूपीएसआई वाले लगातार यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री की ऐसी कोई भाषा होती है कि वो युवाओं को ये कह के एड्रेस करे हमने अपनी जेलें खाली करा ली हैं, मतलब उनकी बात सुनने के बजाय कि उनकी प्रॉब्लम क्या है आप परेशान करने लगोगे। गर्मी निकाल देंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं चर्बी उतार देंगे, लेकिन प्रियंका जी कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। आप जवाब मांगिए इनसे। चर्बी कहा अखिलेश यादव जी ने कि हम चर्बी निकाल देंगे, अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं बोला है। आप पहले माफी मांगिए, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं, आपका आरोप सरासर गलत है। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का कार्य किया, आप माफी मांगेंगे। अखिलेश यादव जी रोजगार की बात करते हैं। Okay. One more. The same thing can be said softly also. Please, we can have a debate. Yes. One more. There are other people who are yet to speak. प्रदेश का युवा अपराध मुक्त समाज भी चाहता है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किनकी सरकार और प्रदेश को नौकरी भी तो चाहिए जी। रोजगार की बात करते हैं आप, रोजगार के साथ साथ पारदर्शी भर्ती की भी बात कीजिए। एक जमाना ऐसा था कि झोला लेकर के सत्ता पक्ष के लोग घूमते थे नौकरियां बेचने के लिए। आज उस माहौल को समाप्त करने का कार्य अगर किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में किया गया है। जितनी भर्तियां हुई हैं, okay, one by one. There's one issue that I want to raise, and I want to come to you. One issue that has not been addressed here. The BJP likes to pat its back on the law and order front, that they have done a remarkable job as far as law and order in this state is concerned, right? As a woman, do you feel, and they also claim that women can actually move around, roam around on the streets, and why not? So do you agree with this claim? Because I may want to add that they have been somewhat successful in spreading this message down right till the very bottom, even in villages. The BJP has been successful to some extent in convincing the people that their law and order is better than the Samajwadi Party. What's your assessment? They may have been successful addressing the people and convincing the people about that they have controlled the law and order. But what is the reality here? The reality is that Unnao mein abhi jaise we have seen the case, okay, and the Home Minister has recently said that यहाँ पे लड़कियाँ गहने पहन के आधी रात को जा सकती हैं. Is this the law and order that we are seeing here? Huh? And second thing, I would like to come on Charanjit on the topic which we are discussing about. Charanjit Singh Channi has just said कि यूपी बिहार के भाइयों को हम नहीं आने देंगे. हमने भाइयों को पकड़ लिया, okay, मगर उसका जो कोर इशू है उसको नहीं पकड़ा. यूपी बिहार के लोगों को बाहर जाना क्यों पड़ता है? Because there are no jobs or less jobs and less opportunities. Because there are no jobs. If I am one of the examples, I do not have a job here. I have to go out of Lucknow. I have to go out of UP to get a job. So आप कह रहे हैं गड्ढा भरने की बात, गड्ढा कहाँ भरा है? गड्ढा नहीं भरा है, बिल्कुल नहीं भरा है. समाजवादी पार्टी के मित्रों से मैं यही पूछना चाहता हूँ, गायत्री प्रजापति की जो वाइफ को आपने टिकट दिया उसका जवाब क्या देंगे आप लोग? प्रजापति की वाइफ पर कितने मुकदमे हैं आप पहले ये बताइए. और जो आप बात करते हैं अपराधियों की, 25,000 का इनामी जो क्रिकेट खेल रहा है आशीष मिश्रा कौन है? आशीष मिश्रा कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चिन्मय आनंद कौन है? इसका जवाब दीजिए. कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका एकदम लॉ एंड ऑर्डर वो पुलिस स्टेट यहाँ जो एक नंबर का कम्युनल है और एंटी वीमेन है उसका एग्जांपल सीधे सीधे देते हैं. ये आशीष मिश्रा टेनी और उनका जो बेटा है उसको बेल मिल जाता है और एफआईआर में जिनका नाम रजिस्टर है उनके पिता का जो कैबिनेट मिनिस्टर. So that's the question on law and order. On the law and order front, here is a question that has been asked. क्या न्यायिक व्यवस्था में आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? आप न्यायिक व्यवस्था ये लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा गया एफआईआर में जिनका नाम है उनसे सवाल तक नहीं करता, मात्र इस वजह से क्योंकि वो यूनियन होम मिनिस्टर में वो मंत्री है, कैबिनेट में मंत्री है. Okay, so an allegation on the Ashish Mishra. I will take one moment. Wait a second. Ashish Mishra Teni wale case mein, the comment that has been made is that the prosecution presented such a weak case that the court had to end up giving him bail. ये आरोप है, इसका आप जवाब कैसे दें? ये बिल्कुल ये निराधार मंत्री का बेटा छूट सकता है 4 की हत्याओं के बाद, तो नाबालिग खुशी दुबे कब जेल से बाहर आएंगे? इसका जवाब
भारतीय जनता पार्टी को I think what the lady right here, one more. खुशी दुबे की जो बात करते हैं Again, we have discussed law and order. एक second. You will have to listen to me, please. I think one moment. The lady raised a she raised a valid issue that people from UP and Bihar are called bhaiye and they are migrants and all sorts because there are no jobs here. आपको लगता है ये एक मेन कंसर्न है, but the point is ये आज से माइग्रेशन नहीं हो रहा है यूपी बिहार के भाइयों का. इससे पहले समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, स्टिल पीपल वर गोइंग आउटसाइड. काफी देर के बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया है, तो मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा. बात जब यूथ की हो रही है तो हम स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. रही बात स्टूडेंट के रिलेटेड, तो इन्होंने एक वादा किया था अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो है वो एक राहत कोष बनाया जाएगा, और वो इन्होंने आज तक नहीं बनाया. और बनाने के बजाय उस राहत कोष को पूरे इंडिया से और यूपी से जो शिक्षा निधि आनी चाहिए थी उसको और घटाते चले गए हैं. 2015 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, आप देख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट हैं. उसके अंदर जो 57 रेट था, एजुकेशनल जो रेट था वो 57 था, और 3 करोड़ 40 लाख स्टूडेंट जो थे उस टाइम पर कॉलेज स्कूल जा रहे थे. और उस वक्त का जो बजट था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 15 करोड़ का 15 करोड़ का बना दिया था. उसके बाद वो बढ़ करके 30 करोड़ हुआ, और अलग अलग तरीके से जैसे ओबीसी आपका हो गया और माइनॉरिटीज हो गया, डिसेबिलिटीज हो गए, उनके लिए अलग अलग 20 तरह से उन्होंने इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए थे जिसमें बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सके और बच्चे आगे बढ़ सके, जिसमें एक आपका कन्या विद्याधन भी था. भारतीय जनता पार्टी ने इसके बजाय बढ़ाने के बजाय अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के बजाय उसको घटाने का काम किया. और जो 70 लाख नौकरियां देने की बात करी थी, क्योंकि बात क्या मुद्दे की है, टॉपिक की, उनको देने के बजाय उनको लाठी दी. आपका बहुत बहुत स्वागत. स्कॉलरशिप देने के बजाय उनको लाठियों से मारा गया. शिक्षकों को किस तरह से मारा गया, जिनको गुरु कहा जाता है आज की डेट में. और कोई भी हो सर, या आप हो या मैं हूं, किसी टीचर से ही पढ़ के आए हो, गुरु का सम्मान होता है. very pointed issues that he has raised. I will come to you. You can reply. Let me take some more comments and I'll come back to you. जल्दी से चाहता हूं. उसके बाद इन्होंने लाठियां से मारने का जो काम किया है, अपना बात और आज की डेट में मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि 22 लाख रोजगार हम आईटी सेक्टर में देंगे, और बच्चियों को केजी से लेकर के पीजी तक उनको फ्री शिक्षा हम देंगे. और रही बात न्याय की और कानून की, जो ये बात कर रहे हैं, बड़ी ऊंची बात करते हैं. ये लोग पढ़ लिख के नहीं आते. इनके बाबा मुख्यमंत्री पर तो ढेरों मुकदमे हैं. इन्होंने खुद अपने जो है वो हलफनामे में एफिडेविट में इन्होंने अपने एफिडेविट में इनके उनके वो मतलब कमाल की बात है. हम न्याय की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक सेकंड मेरी सर, मेरी बात जल्दी नहीं रुक जाइए. अभी मैं आपके पास वापस आऊँ. आई हैव टू कम टू यू लेटर. यू हैव मेड अच्छा रुक जाइए भैया, रुक जाइए बस. हाँ, एक सेकंड. So I'll come back to you. I'll give you a right to reply. आप अपनी पूरी बात और जवाब दे दीजिएगा. हाँ, बस एक सेकंड. हाँ, बताइए. तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं. मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में खोला जाए. गूंगे सिखा रहे हैं, मुंह कितना खोला जाए. लोकतंत्र में गणतंत्र दिवस की क्या ये कैसे, ये इनकी भाषा है कि कोई अगर गूंगा है तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं. हमारा ये सवाल इनसे सीधा सवाल रहेगा, आपने पॉइंटेड ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजीव कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन ने उत्तर प्रदेश में 10,000 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है. पूछिए ऐसा क्यों किया है इन लोगों ने. जल्दी से जल्दी. सर, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू जो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, वो नई शिक्षा नीति भी है. नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल का बीए 4 साल का हो रहा है. रिजर्वेशन को यूपी से हटाया जा रहा है और पूरे इंडिया से हटाया जा रहा है. स्टूडेंट्स लगातार इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार चुप है. So these are the important issues of the youth which are being asked. आपके पास मैं आऊंगा, ये सारी बातें आप सुन लीजिए. यू कैन आंसर. यस मानस जी, जो गाँव गोद लिया है योगी जी ने खुद, आपको उसका नाम पता है गोरखपुर में? उसकी हालत क्या है, क्या आपको उसके बारे में मालूम है? नाम बता दें. पहले नाम वहाँ एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय तक खुल चुका है. आप एक बार जाके देख लीजिए. आपने 2017 के संकल्प पत्र में है कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करी थी. एक नाम गिना दे, एक नाम गिना दे. एक सेकंड. ओके. I have to now give the Bharatiya Janata Party leader right here a right to reply because a lot of questions have been asked.
Yes, please. Sorry, if you allow. शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बजट घटाने वाली केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दूसरी चीज, जब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री कहती है कि 3 साल से मानवाधिकार हनन के मामले में टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो केसेस आपने सीए एनआरसी वाले लोगों के खिलाफ, जिनको आपने दंगाई बताया, उनके खिलाफ आपने किए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये इनके मुंह पर तमाचा है। Okay. One. Please. Ladies and gentlemen, a lot has been said. I think you have all made your points well. Now let's listen. Lots of questions have been raised. आपने सारी बातें सुन ली, एक एक करके आप दोनों से इन सारी बातों का जवाब। सबसे पहली बात, you have failed the youth. आपने यूनिवर्सिटीज उस तरीके से नहीं की, आपने नौकरियां घटा दी, आपने स्कॉलरशिप्स कम कर दी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने शिक्षा की बात की, मैं प्राथमिक स्तर से आपके बात जवाब देने की शुरुआत करता हूँ। कायाकल्प योजना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों तक में आज स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं गांवों के, जो उसके तहत चयनित किए गए, उनका सुंदरीकरण हुआ है, ताकि वहां पर जो छात्र हैं, जो प्राथमिक विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे प्रकार से शिक्षा मिल पाए। प्लीज अलाउ देम टू 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है, 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण हुआ है, वो प्रारंभ होने जा रहे हैं, 14 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इन सबके माध्यम से न केवल मैंने कहा लोकार्पण हो चुका है, बिल्डिंग्स तैयार हैं। अगर आपके पास आके आप सशक्त हैं, आप जाकर के देखिए वहां पर कि उनका लोकार्पण हो चुका है। शिक्षा के बजट पे लेट्स लिसन टू देम प्लीज। वी हैव ऑल आस्क्ड क्वेश्चंस, लेट्स लिसन। आऊंगा, अपना जवाब तो दे दे। शिक्षा के बजट पे बंदरबाट करने वाले लोग आज शिक्षा के बजट की बात कर रहे हैं। तो हुआ है, स्कॉलरशिप नहीं भर पाई, स्कॉलरशिप में गबन करने वाले लोग, स्कॉलरशिप में गबन करने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। किस मुंह से आप आईना दिखा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चाहे ओबीसी वर्ग के छात्र हो, चाहे सामान्य वर्ग के छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप 2017 से 2022 के बीच में मिला है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात को बताना चाहूंगा, जो ये आप लोग युवाओं को बरगलाने का काम किया और आपका दर्द छलका। वन बाय वन जो लोग सीएनआरसी की बात करते हैं, सीएनआरसी वो वाला जो आंदोलन आपने किया, जिसमें मुनव्वर राणा की लड़की उर्सा राणा ने, मुनव्वर राणा की बिटिया उर्सा राणा ने उसका नेतृत्व किया, करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। आज कांग्रेस पार्टी ने I need some order, ladies and gentlemen. I need one more. We won't be able to. Ma'am, I want to request. We won't be able to debate like this. We want one person at a time, please. One person at a time. We cannot debate like this. One person at a time. It's my request. इनको एक सेकंड प्लीज। सीएनआरसी के लोग बात कर रहे हैं, उस आंदोलन में करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई थी, आपको याद है ना? जब बुलडोजर चला था योगी जी का, वो क्यों हुआ था पहले आप बता दीजिए। वो इसलिए हुआ था, जो इसी रूमी गेट पे यहाँ से लेके परिवर्तन चौक में लखनऊ की नफासती धरती को आपने धुएं से भरा हुआ था। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना भी किया है कि वो गलत है, फटकार लगाइए। क्या मना क्या किया कि आप ये करिए, दंगा करिए? उसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली उर्सा राणा को आपने पूर्वा से टिकट दिया है। ओके फाइन, वन बाय वन रिबटल, वन बाय वन। ये बता रहे कि स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। इसी कोरोना काल में सर्वे में निकल कर आया है, हिंदुस्तान के 62% बच्चों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, देखिए ये लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बात नहीं करना चाहते। अब ये लोग दंगों की बात करने पे आ गए। ये लोग कभी पलायन की बात करेंगे, हमको चुनना है। वन बाय वन अभी मेरी बात सुनिए। अभी मेरे बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कही कि स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं।
बिल्कुल चल रहे हैं। जहां स्मार्ट सिटीज बन गई हैं और जहां बुलेट ट्रेन चल रही हैं वहीं इनके स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, जहां बुलेट ट्रेन चल रही है। और जो बात यहां पर होना चाहिए है क्या, बीजेपी की पाठशाला में जिसमें बीजेपी ने टॉप किया है हिंदू और मुसलमान, वो मुद्दा न हो करके जब बात रोजगार की एक वापस उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा था, जब वो उसके लिए प्रदर्शन कर रहा था तो उनपे बुरी तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गई, उनको जेल में डाला गया। और जैसे कि साथी ने कहा कि उनको कहा गया कि हमारी जेलें खाली हैं, आपने युवाओं का अपमान किया। ठीक है, दूसरी बात, जब आप क्या होती है स्मार्टफोन पे ये कहना है, जो बार बार स्मार्टफोन देने वितरण की बात की जा रही है। स्मार्टफोन बहुत कम लोगों को पहली बार दिया गया, यहाँ से बसेस में भर के स्टूडेंट्स को ले गया गया। और दूसरी बात, जिस तरह से पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर पूरे केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, हमारे फोन पे सॉफ्टवेयर, अगर किसी के पास फोन हो तो मैं दिखा सकता हूँ, हमारे फोन पे सॉफ्टवेयर है जिससे हमें ट्रैक किया जा रहा है, हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा रहा है। स्मार्टफोन केवल और केवल एक जुमला है जिसके तहत पर एक युवा को CNRC पे क्लियर एक एलिगेशन है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, केवल ये बीजेपी रूल्ड स्टेट और खास करके उत्तर प्रदेश, केवल यहीं पे इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आई जहां पे लोग मारे गए पॉइंट ब्लैंक की रेंज में, यहाँ पे युवा को मारा। Okay, so one moment. Here is what I'll do. One moment. I have two students. I started the debate. अरे चच्चा रुक जाओ यार. So we had two. We started with two students. Let's go back to them and try and understand whether they are convinced or who has convinced them more. And then I'll come back to you. Aman, you just heard everyone. Who do you think convinces you more? So the topic would have been on education and on unemployment to be removed. But the topic was like कि CNRC में क्या हुआ, मतलब चीजों को गुमराह करने की ज्यादा बात की गई, पॉलिटिक्स चल रही बेसिकली। हाँ। Okay, no, one. मैनुपुलेट किसने किया? One by one. आज टॉपिक को मैनुपुलेट आपने किया। आज मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ जैसी पावन धरती में आपने युवाओं से जुड़ा मुद्दा उठाया। मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट का समय चाहूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज अखिलेश यादव। Okay. I think one moment. One important question has been asked. अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट बन रहा है सुल्तानपुर रोड में। आपने रिवर फ्रंट बनाया। आपने घोटाले किए। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, एक इन्होंने अस्पताल खोले ना, इन्होंने बन रहा है नाम बदलने के टाइम पे भी यही बात मेडिकल कॉलेजेस बन करके शुरू हो गए हैं। ओके, एक सेकंड। आपने कहा मेडिकल कॉलेज बंद करके शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, नाम बता दीजिए। वो नाम पूछ रहे हैं सर, आप देखिए। अरे एक सेकंड, आपने सवाल पूछा, जवाब तो दे दे। सर, शुरू होने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें पहला काम आता है रेजिडेंट्स की तैनाती। क्या रेजिडेंट्स की तैनाती नहीं हो गई है? क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो गया है? वो आखिर किस लिए हुआ है? यूनिवर्सिटी के नाम पे खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं ये लोग। WhatsApp university in place of university. One more. अब आपने एक सेकंड सर, all of you have asked a question. Sir, all of you have asked a question. Name a university or a medical college. Please do it. They are asking, please name any educational institution that this government has made. आज ये सब तथ्यहीन बात कर रहे हैं, जिनका कोई बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सुनने की क्षमता तो रखिए। सुनने दो। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट बना, सुल्तानपुर हवा नहीं खड़े हो जाएंगे। रेसिडेंट डॉक्टर्स की तैनातियां हो गई। चलिए तो देखिए तो 2000
पूरे हिंदुस्तान का पूरी तरह से टैग किया था। विक्रमादित्य मार्ग में बैठ के मिल रही थी, दवाई मिल रही थी, कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ठीक है, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटी बनाई है, नाइक स्कूल मेडिकल कॉलेज बनाए, केवल और केवल नाम बदलने का काम किया है इन्होंने। आज तक अगले 100 साल तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पकौड़े की दुकान लगाएगा, पकौड़ा बेचेगा और आप में से कोई भी बिना चिल्लाए भी ये सारी बातें कह सकते हैं। मैं आराम से सुनने को तैयार हूँ। 1 by 1 प्लीज। यस, स्मार्टफोन्स तो कम से कम प्रोवाइड कर देते। जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे 2 सालों के लिए, स्मार्टफोन्स भी नहीं प्रोवाइड करे। स्कूल की फीस तो कम से कम कर देते थोड़ी देर के लिए। 2 सालों के लिए स्कूल की फीस तो कम कर देते। स्मार्टफोन्स भी नहीं प्रोवाइड करे, स्कूल के फीस भी नहीं कम करी। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाइयों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। नो, सो वन मोमेंट। अब मैं एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, मैं एक जरूरी सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल। Why do you think that the youth will be convinced about the fact that you have done a lot for them and the hope is from you? आपको क्यों लगता है कि युवा आपके साथ है? यही सवाल है। आप लोगों ने कहा कि युवा साथ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। Let me ask them this question. Your reply. व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का काम यदि किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जब पारदर्शिता के साथ भर्तियां होंगी तब चीजें, उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। पर आपकी तरह भ्रष्टाचार पे सुन लीजिए, इनको करनी है। देखिए एक सेकंड, देखिए आपने बोला कि एक व्यवस्था बनाई है, और व्यवस्था आपने बनाई है, और व्यवस्था के बाद एक माहौल तैयार किया है कि that there will be employment generation, correct? बिल्कुल। Don't you think that both could have been done in the 5-year period? ऐसा क्यों है कि अभी हमने ये कर दिया, अब हम ये करेंगे? वो हुआ है, और इसके बाद भी आगे होता रहेगा। चलायमान स्थिति में है। सरकार हमारी आ रही है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई पे होना है सब कुछ होगा। सरकार हमारी आ रही है, इसलिए आप लोग निराश ना हुए। संकल्प पत्र है उसका ये लोग 2017 वाले में पकौड़ी बेच के खा गए, और 2022 का है उसमें ये लोग समोसा बेचेंगे। यही चाहते हैं कि जनता यही करे। अब 70 लाख रोजगार का वादा किया था, 70 लाख रोजगार का वादा किया गया था। सिर्फ 4 लाख के दावे कर रहे हैं आज ये लोग। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हर घर में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता है। BA पास लड़का क्या करेगा, MA पास लड़का क्या करेगा? इनके पास कोई डेटा नहीं है। और दूसरी बात, 70 लाख रोजगार की बातें करते थे, आज आपके गृह मंत्री कहते थे कि पकौड़े की दुकान लगाएगा, पकौड़ा तलेगा। आपने पकौड़े के क्या आप ये हलवाई की बेइज्जती कर रही हैं? स्वरोजगार मतलब नहीं पता इन लोगों को, स्वरोजगार के मतलब नहीं पता। हलवाई बनाइए, लोगों को स्वरोजगार का मतलब नहीं पता। 1 by 1. Ladies and gentlemen, please cool down first. I want each one of you to please. ऐसे इधर आ जाओ भैया। सांस ले रहे हो कि नहीं? तब से पीछे से बोले यार, आराम से बोलिए। आएंगे बाबा ही। अच्छा चलिए ठीक, आएंगे बाबा ही। और महोदय देखिए, महोदय श्रीमान। हाँ, नहीं 30 सेकंड बताइए क्या होगा। माननीय महोदय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश अग्रणी होगा, आगे बढ़ेगा, और अपराधियों की। चलिए अब आपने बोल दिया, अब चुप बस। हाँ, प्लीज। उत्तर प्रदेश की भी है सर। बात इसकी भी है कि जब मुख्यमंत्री IAS IPS अफसरों से अपने जूते साफ कराते थे, आज प्रदेश में अपराध मुक्त बन रहा है प्रदेश। और मुख्यमंत्री अपने खिलाफ सारे मुकदमे हटा लेते थे, अपराध मुक्त। बहन जी, मंच से आपके भैया जी पुलिस को धमकाते हैं। ये है क्या न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? आपके भैया जी मंच से धमकाते हैं।
Okay. Ladies and gentlemen, I think now you have spelled it out. आपने एक second. Can I? Please. Okay, I am out of time. Thank you very much for joining us. Thank you so much. Thanks for coming. Thank you so much. You have आप सबने अपनी बात कह दी. अभी भी कुछ बचा है. शिक्षा स्वास्थ्य पर नौजवान अपनी सरकार बनाए, बस यही कहना चाहूँगा. और वो सरकार योगी आदित्यनाथ जी की होने वाली है. Thank you. I have run out of time. Thank you very much for joining us. We are stopping for a short break at this moment. When we come back, hopefully the tempers will cool down. Hopefully things will get a little quieter. But on the other side of the break, the same conversation from the Chowk area of Lucknow over a little bit of makhan. It's very famous in Lucknow. Stay with us on The Big Fight. So Lucknow has got a new identity in the form of glitzy malls, huge buildings, wide roads. It kind of makes the city look very good. But if you really want to know the real pulse of people, you have to come to the old Lucknow, and that is why we are in the Chowk area. This roundabout that you see is as central as Lucknow really gets, where you have a mix of new buildings yet old. It's an important trade center. This is the main Chowk. But if you see, there are old buildings here as well. Now, for instance, that old building that you see looks like an old Haveli, must be at least 150 to 200 years old. So there is a mix of old and new right here. But how exactly are the people of old Lucknow or in the Chowk area thinking about the electoral contest? This, of course, is Lucknow West constituency. The Lucknow district has 9 Vidhan Sabha segments. What is old Lucknow thinking? What is on their mind? Let's find out. लाइन से दुकानें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज मक्खन. आप देखिए मलाई मक्खन एक एक करके ऑल शॉप्स इस पूरे इलाके में. 4 इधर और आपको सचिन गुप्ता दिखाएंगे एक लाइन से. क्या है ये? चौक की निशानी. चौक का मलाई मक्खन है ये. चौक की निशानी. मलाई मक्खन चौक की जान. जी, चौक आए तो मलाई मक्खन जरूर खाएं. खाते ही मुंह में पिघल जाए. खाएंगे, थोड़ा खा के दीजिए. बस, ज्यादा नहीं. क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक मिश्रा है. अच्छा. कब से मलाई मक्खन बेच रहे हैं? यहाँ तो करीब 20-22 साल से तो हम बैठ रहे हैं. उसके पहले चाचा बैठते थे. अच्छा. उसके पहले भी मेरे बाबा भी बेच चुके हैं. यहाँ सब लोग बेचते चले आ रहे हैं. तो ये बताइए, किस नेता का जीवन जो है एकदम मलाई मक्खन होने वाला है 2022? नेता के जीवन की विषय की बात करें तो हमको देखिए, नेता पे तुमको पहली बात इतना वो नहीं, लेकिन हम अपील जो है वोट जो हम समाजवादी को देते हैं. देंगे. अच्छा, समाजवादी पार्टी को देंगे. उसको देंगे. इसलिए बीजेपी नहीं दे रहे क्योंकि मिश्रा जी हैं? मिश्रा जी नहीं, हमारी एक हवा उड़ी हुई है ना कि ब्राह्मण नाराज हैं. काहे नहीं नाराज होंगे ये बताइए? ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए नाराज होंगे कि नहीं. काहे नहीं नाराज? तुम्हारी सरकार है, तुम जात से बनाने लगते हो. उनकी सरकार आती है, वो जात बनाने लगते हैं. तो ब्राह्मण का तेल लगाता रहेगा जिंदगी भर के लिए. तो आप कह रहे हैं आप सपा को समर्थन करेंगे. उन पर भी तो आरोप है कि वो यादवों को बना देते हैं. अब देखिए, आप अब ये तो बिजनेस बन गया है. ये तो बिजनेस बन गया. ये तो बिजनेस बन गया है. ये तो बिजनेस बन गया है हर चीज का. अच्छा, चौक की खासियत ये है कि जहां आपने कैमरा ऑन किया वहां सब लोग बहुत आइए आप आइए. जितनी देर मिश्रा जी बोल रहे थे, तुरंत एक जन आए, उन्होंने बोला योगी जिंदाबाद. जी, योगी मोदी जिंदाबाद. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से माफियागिरी, गुंडागर्दी, इस कानून का शासन किया यहाँ पे. समझे? उसके बाद बिजनेस कहाँ गया है? उसके बाद बिजनेस कहाँ गया है? खाली माफियागिरी, गुंडागर्दी. चलो अच्छा किया. कारोबार भी तो आगे बढ़ा दो थोड़ा सा. बताओ, कारोबार भी तो आगे बढ़ाइए. कोरोना काल चल रहा है. 2 साल कोरोना में लोग परेशान थे. उसमें कोई भी सरकार होती क्या करती. उसके बावजूद बीजेपी ने बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज कायम किया उन्होंने. हाँ, कोई अपना ये नहीं कि लूट के जेब में रख लो. अपने परिवार का ख्याल रखो.
उन्होंने सबका साथ। कारोबार अब जब वो कह रहे हैं, बताइए, अगर उनको महसूस हो रहा है कि कारोबार में दिक्कत हुई है तो हुई है, सबके साथ है, वो धीरे धीरे सुधार होगा। समय जैसे आएगा सुधार होगा, उसमें कोई इसका ये नहीं है। क्या तो आप एक मौका और देने को तैयार हैं? और आपको क्यों लगता है कि हमेशा के लिए भाई एक मौका क्या होता है ना? इतना काम इस बंदे ने किया और किसी ने नहीं किया। कौन बंदा? भाजपा सरकार ने, योगी ने। मैं आपसे बस एक चीज कहता हूँ, आप जरा जनता से पूछिए, बिजली की व्यवस्था योगी सरकार में अच्छी है या लखनऊ में तो सेम है या उसके पहले थी? जितनी लाइट जाती थी उतना कम बिल आता, जितनी लाइट ज्यादा आती उतना ज्यादा बिल भी तो जाता है। ये तो बताइए। बात सही है। और सुनिए, एक मिनट पूछिए, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति योगी के समय अच्छी थी या उसके पहले थी? और सबसे बड़ा सवाल पूछिए, राशन की दुकानों पे बीजेपी सरकार में अच्छी तरह से राशन मिल रहा है या उसके पहले बहन जी, अखिलेश और मुलायम सिंह के यादव के जमाने में? तो आपने बड़ी बड़ी बात कर दी। मैं कह रहा हूँ ये चौक इलाके में यहाँ का क्या मुद्दा है और यहाँ के विधायक ने क्या कर दिया? यहाँ के मुद्दे की बात आएगी तो ये हमारा अपना पुराना गढ़ है। देखिए यहाँ हम लोगों को कोई कभी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ के विषय में अगर गए, बाकी सरकार देखिए इसकी बने, हमारे उसके मतलब नहीं। लेकिन जो यहाँ का जो है मुद्दा, यहाँ के इतिहास में जाए, लालजी टंडन जो है वो यहाँ से, उनका इतिहास हमेशा बना रहेगा। उनका इतिहास हमेशा बना रहेगा क्योंकि उन्होंने यह चौक बनाया है। चौक का बात आएगी तो चौक की बात है तो चौक को तो उन्होंने बनाया है। चौक को जो पॉपुलर बनाया गया है वो टंडनी जी ने बनाया और कोई नहीं बनाई। चौक में हुआ है, ठीक है, बात नहीं कर सकते। चौक बात हम कर रहे हैं, बाकी जो गढ़ है और जो आज भी सम्मान। मतलब आपका ये कहना है कि चौक इलाके में आज भी लालजी टंडन याद किए जाएंगे? बाकी और इसका आज की राजनीति से मतलब नहीं है। लालजी टंडन की जो इतिहास है उसका आज की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये बाबूजी की देन है, ये बाबूजी की देन है। जो हम लोग हैं, बाबूजी उनका जो मक्खन वाले बैठ रहे हैं, ये सब बाबूजी की देन है कि उनकी सरकार चली गई। वरना आज यहाँ ये सब बेचारे, इतना जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इतने लोग देखिए रोजगार कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को आई होती उस समय, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बस 23 तारीख को हम लोगों को, सब लोगों को मिलके वोट डलाना है। जय श्री राम, जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा तय भाजपा। लेकिन मिश्रा जी आपसे एग्री नहीं करते हैं? हाँ, उनको हम यहाँ के एग्री हैं, मुख्यमंत्री से एग्री नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ टंडन से एग्री हूँ, वो होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं उनको वोट दूंगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से, योगी से नहीं एग्री हूँ। मैं इतना वोट किसी के कहने पे कोई नहीं देता है। घर की औरत तो वोट नहीं देती कहने पे। ये बात हमसे बोली गई, ये जरूरी बात बोले इन्होंने, तो वो क्यों दे आपके कहने पे? वो अपने हिसाब से दें। ये मेरे कहने पे वोट, घर की औरत जो है वो आपके कहने पे वोट क्यों डालें? वो अपनी मर्जी से डालेंगी। मर्जी से वोट अपना अधिकार है, वोट अपना अधिकार है, उसमें कोई होने। लेकिन मैं, जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन है कि भैया इस सरकार को आने दीजिए, इसी को वोट करिए, जिससे गरीबों को, जिनको इस महीने में खाने के लाले पड़ जाते थे, उनको 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया चावल उनको मिलता और उनके जीवन में भी मक्खन मलाई हो। सुनिए, उनके जीवन में भी मक्खन मलाई मिलता रहे, गरीबों को मिलता रहे। रही बात लोग जो कहते हैं कि सिलेंडर महंगा है, 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी सिलेंडर महंगा था, तब लोगों ने क्यों नहीं कहा? और ये जो सामने डोमिनोज का पिज्जा खुला हुआ है, 500 रुपए का आप पिज्जा खा लेंगे, ठीक है, और सिलेंडर में देने में खबर खराब हो। ये गलत बात है। वो सिलेंडर वाला आदमी अलग है, पिज्जा वाला अलग है। और क्या, एक बात और कहूँगा, एक मिनट रुकिए। 500 वाला पिज्जा खाएगा, जिसके बाद 10 रुपए 10 रुपए वाली चीज खाएगा। देखिए बात तो सही है। अब गरीब आदमी को आप कह रहे हैं कि पिज्जा खा लो। 2 रुपए तो मैं 2 ही रुपए खर्चा करूंगा, 10 रुपए भी तो बढ़ी है। पहले ही जब पूछिए कितने रुपए। अच्छा एक सेकंड, आपकी राय जान लें। बताइए क्या? नहीं, आप जो ये बात सुन रहे थे उसमें आपको क्या लगता है? अरे भाई 500 रुपए का पिज्जा खाने वाले कह रहे हैं सिलेंडर जो है बहुत सस्ता है, उनके लिए सस्ता है। हम 10 रुपए की चीज नहीं खा सकते, हमारे लिए बहुत महंगा है। पहले तो हमारे पिताजी 5 रुपए देते थे, आज जेब में 2000 रुपए। आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी सिर्फ जो है इन्हीं जैसे लोगों की बढ़ी है, हम लोगों की नहीं बढ़ी है। करना नहीं चाहता, लोग कहते बेरोजगार है। मेहनत करिए,
नहीं, ये अच्छा ऐसा है, ये इन लोग और वो लोग वाली विचारधारा ठीक नहीं। सुनिए कहाँ से सस्ता है बताइए हमको, कहाँ से क्या सस्ता है? पहले तनख्वाह 7,000 थी, याद है 15,000 प्राइवेट आदमी की, कैसे सस्ता है? क्या सस्ता है बताइए हमको, बताइए क्या सस्ता है? आप कह रहे हैं सब एकदम सस्ता है। सब सस्ता है, सब सस्ता है, ये बताइए सब सस्ता है। नौकरी देंगे ये क्या नौकरी देंगे? किसको नौकरी देंगे? कोई किसी को नौकरी नहीं देता है। अपनी मेहनत करिए, अपना काम करिए, कोई किसी को नहीं करता है। रिक्शे वाला भी 500 रुपए कमा रहा है। पढ़ा लिखा बीकॉम किया लड़का रिक्शा चलाए। सुनिए वो एक सेकंड वो कह रहे हैं कि क्या पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा ही चलाए? क्या पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा ही चलाए? पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर रहा है, ये ना कहिए कि काम नहीं कर रहा है। तो शारीरिक मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत कर रहा है। मैं नहीं मानूंगा इस चीज को कि आमदनी नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, सुन लिया भाई, आप ही बोले चले जाए। एक बात खाली सुन लीजिए, लोग कह रहे हैं बीजेपी खराब है। जितनी योजनाएं बीजेपी गवर्नमेंट में आई हैं, क्या इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया? आप बताइए, क्या इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया? सबका साथ सबका विकास। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है। होली का जुलूस एक परंपरागत यहाँ निकलता है, वो तो हमको याद है। और यहाँ सारे मुस्लिम भाई यहाँ स्वागत करते हैं। मुहर्रम में हम लोग सबील लगाते हैं। यहाँ पे कोई नफरत का माहौल नहीं है, परंतु भाजपा की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी रही। और सबसे ज्यादा जो राशन की व्यवस्था है वो यही अल्पसंख्यक समाज ही ले रहा है। सबसे पहले यही लगते हैं लाइन में जाकर के। नहीं तो सब लोगों के लिए लाभ है ना, तो हर कोई ले, बिल्कुल ले। तो इसमें चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हो या किसी भी समाज के हो। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय देखिए, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अभी फिलहाल ये खत्म करते हैं, मेरा मक्खन पिघल जाएगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।